یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جس نے اپنی زندگی کے 300 سال ایک قبر کے اندر گزارے۔ جب 300 سال کے بعد وہ قبر سے باہر نکلا تو دنیا پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ لوگ اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے جسم کے اوپر موجود لباس کا چلن ختم ہو چکا تھا۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے جو کہ کافی پہلے ہی بند ہو چکے تھے۔ آخر وہ شخص کون تھا، قبر میں کیسے گیا اور پھر 300 سال کے بعد قبر سے صحیح سلامت وہ باہر کیسے نکلا؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص میرے پاس آیا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا، جو دیکھنے سے کافی امیر شخص نظر آتا تھا، لیکن اس کا چہرہ مہرہ باقی لوگوں سے جدا تھا۔ اس کے جسم کے اوپر موجود لباس بھی کچھ عجیب طرح کا تھا۔ وہ میرے پاس آیا، ادب سے آ کر مجھے سلام کیا اور وہ کہنے لگا کہ حضور، میں بہت دور سے آپ کو تلاش کرتا کرتا آیا ہوں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ شخص میرے قریب بیٹھ گیا اور اس نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ اس نے کہا، میں فلاں شہر کا رہنے والا ہوں، میں اپنے زمانے کا بڑا امیر کبیر آدمی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کی نعمتیں عطا کی تھی، میرے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بڑے آرام اور مزے والی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک میری قسمت نے کروٹ بدلا اور میں غریبی کے قریب ہوتا چلا گیا۔ میرا سارا کاروبار آہستہ آہستہ تباہ ہو گیا، مال و اسباب ختم ہوتا چلا گیا۔ گھر کے اندر جو کھانے پینے کی چیزیں تھی دھیرے دھیرے وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی اور میرے گھر میں فقر و فاقے کی نوبت آ گئی۔ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پریشانی کے عالم میں دن رات اپنے گھر میں پڑا رہتا، یہاں تک کہ میرے گھر والے بھی مجھ سے تنگ آ گئے۔ اب میری بیوی نے، میرے بچوں نے مجھے تانا دینا شروع کر دیا، کم سے کم گھر سے باہر نکلا کرو، ہاتھ پیر مارا کرو، کاروبار نہ کر سکو تو کم سے کم محنت مزدوری کر لیا کرو۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ اب میرے بیوی بچے بھی مجھ سے تنگ آ چکے ہیں تو میں نے اپنے گھر سے باہر نکلنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ ایک دن میں نے اپنے کچھ کپڑے اٹھائے، اپنی سواری کے گھوڑے کو ساتھ لیا اور اپنے بیوی بچوں کو یہ کہتا ہوا میں گھر سے نکل گیا کہ اب میں اس وقت واپس آؤں گا جب میرے پاس مال و دولت موجود ہوگی، جب میرے ہاتھ میں دینار و درہم ہوں گے، میں اس سے پہلے آنے والا نہیں ہوں۔ میرے بیوی بچوں نے بھی مجھے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ اب میں اپنے گھر سے نکل تو گیا، لیکن مجھے جانا کہاں تھا، منزل کیا تھی، میں کاروبار کروں گا یا کہیں جا کر نوکری کروں گا، مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں بھٹکتے بھٹکتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک انتظار گاہ بنی ہوئی تھی، یعنی وہاں آنے والے لوگ بیٹھ کر انتظار کرتے تھے۔ کوئی کسی سے ملنے کا انتظار کرتا، کوئی کاروبار کے تعلق سے ایک دوسرے سے بیٹھ کر وہاں باتیں کرتا، کوئی اپنی سواری کا انتظار کرتا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر جسم فروش کئی عورتیں بھی موجود ہیں۔ میں بھی مجبوراً جا کر وہیں انتظار گاہ میں بیٹھ گیا۔ جب میں کافی دیر تک وہاں اکیلا بیٹھا رہا تو کچھ جسم فروش عورتیں میرے آس پاس آئیں اور آنے کے بعد ایک عورت کہنے لگی، بتائیں کیا ارادہ ہے، کہاں چلنا ہے؟ اس پر میں نے اس سے کہا، میں بہت پریشان حال انسان ہوں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے بھوک کی شدت ہے، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں، کیا تم میں سے کوئی میرے لیے کچھ کھانے کا انتظام کر دے گا؟ اس پر ایک عورت کو مجھ پر رحم آ گیا، اس کے پاس کچھ کھانے کی چیزیں موجود تھی، اپنی بچی ہوئی وہ چیز لا کر اس نے میرے حوالے کر دی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اس کو کھا کر اپنا پیٹ بھرا۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی، رات کا کیا ارادہ ہے؟ اس پر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا نا، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے ہاتھ میں مال و دولت بھی نہیں، میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی، میں نے تمہیں کھانا کھلایا ہے، اس کے عوض تو تمہیں کچھ دینا ہی پڑے گا۔ میں نے کہا، اس کھانے کے بدلے اگر مجھ سے کوئی کام کروانا چاہتی ہو، محنت مزدوری کروانا چاہتی ہو تو بتاؤ، میں اس کی خاطر تیار ہوں۔ وہ عورت اپنا منہ بگاڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر تک میں یوں ہی خاموش بیٹھا رہا۔ ان جسم
जिस्म फरोश औरतों में से एक औरत मेरे पास आई और उसने मुझसे आकर कहा, ऐ शख्स बता आखिर तेरा मामला क्या है। इस पर मैंने उस औरत से कहा, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे बीवी बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं तंग दस्त हूँ, मेरे घर में फाका कशी की नौबत आ चुकी है, मैं चाहता हूँ कि कहीं जाकर या तो मजदूरी करूँ या तो कोई कारोबार करूँ, लेकिन मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं है और मुझे यहाँ कोई जानता पहचानता भी नहीं है। इस पर वो औरत कहने लगी, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने उस औरत से कहा, नहीं नहीं, अगर कोई काम हो तो बताओ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। इस पर उस औरत ने लपक कर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घसीटते हुए अपने घर के रास्ते की तरफ चल पड़ी। मैं उस औरत से बार बार कह रहा था, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं तुम्हारे घर जाकर क्या करूंगा, लेकिन वो औरत मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। यहाँ तक कि वो मुझे घसीटते हुए अपने घर ले गई, घर के कोने में मुझे बिठा दिया और फिर खुद अंदर वाले कमरे में चली जाती है। वो शख्स कहता है कि मैं बाहर बैठा बैठा ये सोच रहा था कि भला ये औरत मुझे अपने घर क्यों कर लेकर आई है, कहीं ये मुझसे कोई गुनाह का काम, बुराई का काम तो नहीं करवाएगी। आखिर अब मैं करूं तो क्या करूं। मैं इसी कश्मकश में था कि थोड़ी देर के बाद वो औरत वापस कमरे में आती है। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। उसने थैली को मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसके अंदर 10 दिरहम मौजूद हैं, इसे ले जाओ, इसके जरिए जो कुछ कारोबार कर सकते हो जाओ कारोबार करो। मैंने उस थैली को लेने से इनकार कर दिया। इस पर वो औरत कहने लगी, ये पैसे हराम के नहीं हैं, ये जिस्म फरोशी के नहीं हैं, बल्कि ये पैसे मैंने मेहनत मजदूरी करके जमा किए हैं। दरअसल अपने पेट की खातिर, अपनी दुनियावी जिंदगी को गुजारने की खातिर मैंने जिंदगी भर जिस्म फरोशी की, अल्लाह की नाफरमानी की, हराम पैसे कमाए और अपने जिस्म को पाला। लेकिन ये 10 दिरहम मैंने मेहनत मजदूरी करके जमा किए इस नियत के साथ कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे जिस्म के ऊपर कफन हराम पैसों का नहीं बल्कि हलाल पैसों का होना चाहिए। ये 10 दिरहम मैंने अपने कफन की खातिर रखा था, लेकिन तेरी गुर्बत को देखकर, तेरी मजबूरी और हालात को देखकर मुझे तुझ पर रहम आ गया, इसलिए अपने कफन के हलाल के 10 दिरहम मैं तेरे हवाले करती हूँ, ले जा, जाकर कोई कारोबार कर, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए तो तू वापस लाकर मुझे ये 10 दिरहम दे देना, ताकि मरने के बाद मुझे हलाल कमाई के पैसों का कफन मिल जाए। और अगर इसके बाद तेरी मेरी मुलाकात न हो सके तो मुझे ये पैसे न लौटा सके तो मेरे हक में दुआ करना कि अल्लाह तबारक ताला मेरे उम्र भर के गुनाहों को माफ फरमा दे। इसके बाद वो शख्स कहता है, मैंने वो 10 दिरहम वाली थैली ले ली, उस औरत का मैंने शुक्रिया अदा किया, उसे दुआएं देता हुआ मैं उसके घर से रवाना हो गया। मैं दोबारा आकर इंतजार गाह पर बैठ गया। अभी मैं वहां आकर बैठा था कि मैंने देखा एक अमीर ताजिर का गुजर वहां से हो रहा था। मैंने करीब जाकर उसे अदब से सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब देते हुए कहा, कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो। मैंने उससे कहा, गरीब मुसाफिर हूँ, इस शहर में किसी काम की तलाश में आया हूँ। आपको अल्लाह ने हर तरह की नियामतें अता की हैं, आपके पास खुद्दाम की कोई कमी नहीं है। अगर मुझ गरीब को भी नौकरी पर रखेंगे अल्लाह आपको और बरकत अता करेगा, मेरे बीवी बच्चों का भला हो जाएगा। इस पर उस अमीर ताजिर को मुझ पर रहम आ गया। उसने मुझसे कहा, क्या काम कर सकते हो, क्या कोई हुनर जानते हो। मुझे जितने हुनर आते थे मैंने उसे सारे गिना दिए। उसके बाद मैंने कहा, हुजूर आप मुझे अगर कोई मेहनत मजदूरी का काम दे दें, अगर जानवरों को संभालने का काम दे दें, आप जो कहें मैं करने को तैयार हूं। इस पर वो अमीर कबीर आदमी मुझे अपने साथ लेकर अपने शहर चला गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर मैं उसके यहाँ नौकरी पर लग गया। वो मुझे सुबह शाम खाना भी देता और उसके साथ साथ मुझे काम बता दिया जाता। जो काम भी मेरे जिम्मे किया जाता मैं वो सारे काम बखूबी अंजाम देता था। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अक्ल व शऊर अता फरमाया था। अपने फहम व फरासत की बुनियाद आहिस्ता आहिस्ता मैं उस आदमी के करीब होता चला गया, मैं उसका करीबी बनता चला गया। उसे मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा भी था। फिर वो मुझसे हर बात में राय मशवरा भी करने लगा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुझे तनख्वाह और खाने के साथ वो इनामात भी देने लगा। मैं तमाम दीनार और दिरहम को अपने बीवी बच्चों की खातिर जमा करता रहा।
कुछ साल गुजरने के बाद एक पैगाम रसा। मुझे तलाश करता करता मेरे पास मेरे बीवी बच्चों का पैगाम लेकर आया। मेरे बीवी बच्चों ने कहा था, बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उनकी शादी करनी है। अगर तुम्हारे पास कुछ रुपए पैसे जमा हो गए हों तो वापस आ जाओ ताकि बच्चों की शादी कर दी जाए। वो शख्स कहता है कि अपने बीवी बच्चों का ये पैगाम सुनते ही मैंने अपने घर वापस जाने का इरादा कर लिया। मैंने अपने आका से इजाजत ली। मेरे पास जो भी मालो असबाब था वो सारा मैंने इकट्ठा किया। मेरे पास अपने 2 हाथी थे, चंद घोड़े थे, ढेर सारे दीनार और दिरहम थे जो तकरीबन 10,000 बनते थे। वो सब कुछ अपने साथ लेकर मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। चलते चलते मुझे इस बात का ख्याल आया कि सबसे पहले मुझे उस इंतजार गाह पर जाकर उस औरत से मुलाकात करनी चाहिए जिसने 10 दिरहम के जरिए मेरी मदद की थी, मैं ताकि उसे उसकी रकम लौटा सकूं। इसके बाद वो शख्स सफर करता करता उस शहर में पहुंचता है और इंतजार गाह पर जाकर उस औरत को तलाश करता है, लेकिन कहीं वो औरत नजर नहीं आती। आखिर वहां मौजूद औरतों से जब उस औरत के बारे में वो शख्स पूछता है तो औरतें बताती हैं वो औरत तो आजकल बहुत ज्यादा बीमार है, उसने यहाँ आना भी बंद कर दिया है, अपने घर के बिस्तर पर बीमार पड़ी है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वो शख्स कहता है कि मुझे चूंकि पहले से उसका घर मालूम था, मैं फौरन उसके घर पहुंचता हूं। मैंने वहां जाने के बाद देखा उसके हालात बड़े बुरे हो चुके थे। वो अपने बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, उसके सिरहाने मक्खियां उड़ रही थी, उसके घर में खाने पीने की तमाम चीजें खत्म हो चुकी थी। वो शख्स कहता है कि उस औरत को इस हाल में देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। एक वक्त इस औरत का कैसा था और आज कैसा वक्त है। उस औरत को जाकर मैंने उसे सलाम किया। उस औरत ने कहा, बताओ मैं तुम्हारी खातिर क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा, तुमने जो 10 दिरहम मुझे दिए थे, आज वो पैसे मैं तुम्हें लौटाने आया हूँ। तुम बताओ मैं तुम्हारी खातिर क्या कर सकता हूँ। इस पर वो औरत कहने लगी, मैंने अपने पिछले तमाम गुनाहों से तौबा कर ली है। मैं चाहती हूं कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। अगर तुम वाकई मेरे लिए कुछ करना चाहते हो, ये 10 दिरहम मुझे वापस ना करो, बल्कि जब तक कि अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है तुम वादा करो उस वक्त तक तुम यहीं रहोगे, और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो उसी हलाल पैसों से तुम मेरे कफन दफन का इंतजाम करोगे। वो शख्स कहता है कि मैंने उस औरत से वादा कर लिया और फिर मैंने वहीं क़याम किया। मैंने देखा कि वो औरत बिस्तर पर लेटे लेटे अल्लाह का जिक्र करती रहती थी, दिन रात तौबा और इस्तग़फ़ार करती रहती थी। इसी हालत में 1 हफ्ता गुजरा कि उस औरत का इंतकाल हो गया। मैंने उस औरत के कफन दफन का एहतमाम किया। उस औरत ने मेरी मदद की खातिर मुझे 10 दिरहम दिए थे, लेकिन उसके कफन दफन में मैंने इससे कई गुना ज्यादा माल खर्च किया। मैंने उसकी तरफ से खूब सदका व खैरात भी किया। अब मैंने ये सोचा कि चंद रोज यहाँ ठहरने के बाद मैं फिर अपने शहर चला जाऊंगा। मेरे पास अब जो कुछ बचा था वो तकरीबन 8,000 दीनार और दिरहम थे, जिसे मैंने एक थैली के अंदर रखा था। एक दिन जब मैं उसके घर में उस थैली को तलाश कर रहा था, मुझे वो थैली कहीं नहीं मिली। काफी देर तक मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे पता चला कि उस औरत की तदफीन के मौके पर जब मैं कब्र के अंदर उतरा था, मैंने थैली को निकाल कर कब्र के कोने में रख दिया था। लगता है तदफीन की जल्दबाजी में मैंने अपने रुपयों की थैली के साथ ही कब्र पर मिट्टी डाल दी। अल्लाह अकबर। वो शख्स कहता है कि जब मुझे ये बात याद आई तो अब चूंकि रकम बहुत ज्यादा थी और यही मेरी कुल कमाई थी जिसे लेकर मुझे अपने शहर वापस जाना था, मैंने कब्र को दोबारा खोद कर अपनी थैली को निकालने का इरादा किया। मौका तलाश करके मैं कब्रिस्तान में पहुंचा। मैंने उसकी कब्र को खोदना शुरू किया। मैं कब्र के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाने के बाद ये देखकर मैं हैरान रह गया। मुझे उस औरत की मैयत कहीं नजर नहीं आती थी और न ही कब्र के अंदर मेरे रुपयों की थैली मौजूद थी। मैंने सोचा कि शायद हमने मिट्टी ज्यादा डाल दी होगी, मैं इसे और गहरा खोदता हूँ। मैंने कब्र को मजीद गहरा खोदना शुरू किया। मैं मिट्टी निकालता रहा, कब्र खोदता रहा, मिट्टी निकालता रहा, कब्र खोदता रहा। मैं काफी गहराई में चला गया। जितनी गहरी कब्र हमने खोदी नहीं थी, उससे ज्यादा मैं अंदर
तक जा चुका था, लेकिन फिर भी मुझे उस औरत की लाश और मेरे रुपयों की थैली दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक मुझे उस कब्र के अंदर एक दरवाजा नजर आता है। मैं हैरान था कि भला कब्र के अंदर दरवाजा कहां से आ सकता है। मैंने जब दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा खुल जाता है। जब दरवाजा खुला तो मैंने देखा कि वहां कब्र नहीं बल्कि एक आलीशान महल था। महल के बीचों बीच एक तख्त लगा हुआ था। चारों तरफ खुद्दाम, गुलाम और कनीजें मौजूद थीं और तख्त के ऊपर एक खूबसूरत शहजादी बैठी हुई थी। जैसे ही मेरी नजर शहजादी पर पड़ी, उसने मुझे देख लिया। मेरे दिल में डर पैदा हो गया। मैंने सोचा, लगता है मैं किसी और आलम में आ चुका हूं। फिर मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ, अगर बादशाह ने मुझे देख लिया, वो गिरफ्तार करके मुझे कत्ल करवा देगा। मैं फौरन पलटना चाहता था कि वापस पलटकर कब्र से बाहर निकल आऊं, लेकिन उसी वक्त चंद सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके मुझे शहजादी के पास ले गए। मैंने उसे देखा, मैं हैरान था। उसने मुझे देखकर कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने हैरत से कहा, नहीं, मैंने आपको पहली बार देखा है, मैं आपको नहीं पहचानता। शहजादी मुस्कुराकर कहती है, अच्छा, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही औरत हूं जिसने आपकी मदद की खातिर आपको 10 दिरहम दिए थे। मैं वही हूं जिसके कफन दफन का आपने इंतजाम किया। वो शख्स कहता है कि मैंने हैरत से उससे कहा, अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके बारे में क्या फैसला फरमाया? इस पर वो औरत कहती है, मैंने जीते जी अल्लाह की बारगाह में अपने तमाम गुनाहों से सच्ची तौबा कर ली थी। मैंने गरीबी बर्दाश्त की, फाका कशी बर्दाश्त की, लेकिन मैंने जिस्म फरोशी करना गवारा न किया। जब तुम लोग मुझे कब्र में दफन करके वापस लौटे, मुझे अल्लाह के हुजूर हिसाब किताब के लिए खड़ा किया गया। मैं शर्मिंदा थी। अपना गुनाह आलूद बदन लेकर अल्लाह के हुजूर कैसे जाऊंगी? बस इसी कश्मकश में थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तू मेरी बंदी होकर मेरे बंदे पर रहम करे। तूने मेरे बंदे की गुर्बत पर रहम किया। तूने 10 दिरहम देकर उसकी मदद की। जा, मैंने तेरे तमाम गुनाहों को माफ कर दिया। तूने एक गरीब परेशान हाल बंदे की मदद की, मैंने तेरी मदद की। तूने उसे 10 दिरहम दिए, मैं तुझे जन्नत की नेमत अता करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे पिछले तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया और तेरी मदद करने के वजह अल्लाह ने मुझे जन्नत अता कर दी। सुभान अल्लाह। वो शख्स कहता है, मैं उस औरत की बातें सुनकर हैरान था और सोच रहा था, अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना सत्तार है, कितना गफ्फार है कि वो औरत मुझसे कहती है, एक काम करो, अब तुम वापस जाओ। तुमने 3 सातें यहां गुजार ली हैं, यानी तकरीबन 3 घंटे तुमको यहां हो चुके हैं। अब तुम वापस जाओ, अब तक तो दुनिया का सारा निजाम ही बदल चुका होगा। वो शख्स कहता है, जब औरत ने मुझे जाने के लिए कहा, मैं वापस कब्र से पलटा, कब्र से बाहर निकला। अब जब बाहर निकल कर आया तो मेरे पैसों की थैली मेरे हाथ में थी, लेकिन दुनिया वाकई पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुझे दूर दूर तक वो रास्ते, वो गलियां, वो चीजें नजर नहीं आ रही थी जो पहले मौजूद थी। मैं वहां से उठकर इंतजार गाह तक पहुंचा। मैं जब वहां गया तो मैं देखकर हैरान था। वहां कोई इंतजार गाह मौजूद न थी, बल्कि वहां पर एक आलीशान खूबसूरत इमारत मौजूद थी। वहां एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उससे कहा, बाबा, यहां तो कभी एक इंतजार गाह हुआ करती थी, आखिर ये इमारत कब तामीर हो गई? इस पर वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, मुझे नहीं पता यहां इंतजार गाह कब थी, अलबत्ता तुम मेरे वालिद के पास चलो, हो सकता है कि मेरे वालिद इसके बारे में तुम्हें कुछ बता सके। फिर वो शख्स मुझे अपने साथ लेकर अपने बूढ़े बुजुर्गवार वालिद के पास गया। उसके वालिद बीमार थे, बिस्तर पर पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे देखा, मैंने सलाम किया और मैंने सलाम करने के बाद कहा, बाबा, फला मकाम पर इंतजार गाह हुआ करती थी, आखिर वहां इमारत कब तामीर हुई? इस पर वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, मैंने अपनी आंख से वो इंतजार गाह तो नहीं देखी, अलबत्ता मेरे बाप दादा ने मुझे बताया कि कभी उस जगह पर इंतजार गाह हुआ करती थी। इसके बाद मेरे पास जो पैसे थे, मैंने वो पैसे उन्हें दिखाए तो उन लोगों ने कहा, ये पैसे तुम कहां से लेकर आए हो? हमने तो ये पैसे कभी देखे ही नहीं, हो सकता है ये बहुत पुराने पैसे हों, तुम्हें शायद तुम्हारे दादा परदादा से मिले हों। मैंने उनसे कहा, नहीं नहीं, दरअसल उस इंतजार
इंतजार गाह पर एक फाहिशा औरत बैठा करती थी। उस औरत की तदफीन की जिम्मेदारी मैंने ली थी। उसकी कब्र के अंदर मेरी ये थैली रह गई थी। मैंने उसे निकालने की खातिर उसकी कब्र को दोबारा खोदा और फिर कब्र के अंदर से ये थैली निकाल कर आया हूं। उस पर वो बूढ़ा आदमी कहने लगा, तुम किसकी बात करते हो? उस इंतजार गाह पर एक फाहिशा औरत बैठा करती थी। हमने सुना है कि मरने से पहले उसने तौबा कर ली थी। उसकी कब्र के अंदर एक आदमी दाखिल हुआ। उसको तकरीबन 300 साल का अरसा गुजर चुका है। आज तक वो कब्र से बाहर निकल कर नहीं आया। इस पर वो शख्स कहता है कि बाबा, आप जिसकी बात कर रही हैं ना, वो मैं ही हूं। मुझे नहीं पता कि 300 साल का अरसा कैसे गुजर गया। मैं तो वहां 3 सातें ही रहा हूं। इस पर वो शख्स कहता है कि तुम एक काम करो, हमारे यहाँ एक मुहद्दिस रहते हैं, अब्दुल अजीज उनका नाम है, उनसे जाकर मुलाकात करो। हो सकता है कि वो तुम्हारी कुछ मदद और रहनुमाई कर सके। इसके बाद वो शख्स कहता है, मैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी की खिदमत में पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने उन्हें अदब से सलाम किया और सलाम करने के बाद मैंने उन्हें तमाम वाकया तरतीबवार सुना दिया। मेरी पूरी कहानी को सुनने के बाद शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने मुझसे कहा, तुम एक काम करो, तुम मक्का मुअज़्ज़मा चले जाओ। वहां जाकर तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का जिक्र व अस्कार किया करो। इसके बाद वो शख्स कहता है, मैं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी से इजाजत लेकर मक्का मुअज़्ज़मा चला गया। वहीं जाकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ हुआ। इसके बाद शाह अब्दुल अजीज अपनी किताब में लिखते हैं, उस आदमी का वहीं हरम शरीफ में इंतकाल हुआ और हरम में इंतकाल के बाद उसे जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, यह है उस शख्स की कहानी जिसने अपनी जिंदगी के 300 साल एक कब्र के अंदर गुजारे। उसकी खातिर वो 3 सातें थी, 3 घंटे थे, लेकिन दरअसल वो 300 साल थे जो उसने उस कब्र के अंदर गुजारे। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने अपनी किताब में इस पूरे वाक़ये को नकल फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम हम सबको भी मौत आने से पहले अपने तमाम गुनाहों पर सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हलाल कमाई के लुक़मे खाने, हलाल कमाई के कपड़े पहनने और हलाल कफन के जरिए दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमें परेशान हालों की, जरूरतमंदों की, गरीबों की मदद की तौफीक अता करे। एक गुनाहगार औरत ने परेशान हाल मुसलमान की मदद की 10 दिरहम के जरिए और अल्लाह तबारक तआला ने उसके तमाम गुनाहों को माफ करके उसे जन्नत अता कर दी। अल्लाह हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।